हेलो। हाँ जोया। हेलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रही ना? हाँ सर, आ रही है आवाज। स्क्रीन भी दिख रहा? यस सर, स्क्रीन में नजर आ रहा है। हाँ ठीक। सो फ्रॉम लास्ट पीरियड वी आर स्टडीing nucleic acids. So nucleic acids are the largest complex biomolecules which are mainly present in the nucleus, and these are the genetical machinery of all the living organisms, in which we have studied the completed the DNA molecule, and today we are studying the RNA. So RNA is again a ribose nucleic acid, and it is a genetic material of some viruses. And RNA is universally present in prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. It is more functional in protein synthesizing cell. So actually, the role of this RNA, ribulose nucleic acid, is more in the protein synthesis as compared to there is a heredity in some there is a viruses. So this structure of RNA molecule is composed of nucleotides but differs from DNA in three ways. It is having small changes in there is a chemical composition of DNA and RNA. It is a single stranded nucleotide instead of double stranded. So double stranded is there is a in DNA molecule. Two strands are twisted with each other, forming there is a one a polarizer to each other. And here another change is there is a the thymine is replaced by uracil. This is another change. And third one is that it contains ribose instead of deoxyribose sugar. Sugar is also there is a change. So these are the three changes. We will again some more differences that is occurs in these two nucleotides, or there is two nucleic acid. We will see the last there is a slide. So see here, this is a double in the picture you are seeing that this is the first one picture is the DNA double stranded molecules is there, and see the a single stranded RNA is there. So here it is a single stranded, and this is the nitrogen bases are exposed. There's here on the upper side. So these are the exposed nitrogen A, U, C, G, S, then adenine, uracil, cytosine, guanine. So these are there is a exposed nitrogen bases which are in the RNA molecule. It is a very much single stranded. It is sometimes double stranded because of a folding itself, but otherwise RNA is always there is a single stranded molecule. And here this is another slide is here. It is shown here thymine is replaced by here uracil. So there is a small change is there. There is H3C is there here, only H is there. Other are rest of the content is there is a similar. And again here this is a ribose sugar, and another is a deoxyribose sugar. Again this is we have seen there is a one, there is a O is extra in the a ribose sugar, and whereas in the deoxyribose only there is a O is upset. So this is also we have previously seen in during the study of DNA molecules. So such type of there is a structure is seen of there is a RNA molecule. Then this is a central dogma, means there is a how protein synthesis is there is a carried out with the help of this DNA and RNA molecule. So DNA which is present in the chromosome present in the nucleus, and this is comes out in the cytoplasm and becomes RNA from nuclear core, and it is comes out as into the cytoplasm and it becomes RNA, particularly mRNA बन जाता हो, और उसके बाद RNA का उससे प्रोटीन बन जाता है. तो प्रोसेस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एक देर इज फिगर है, अपन वो उसको देखने वाले आगे के स्लाइड में. तो जस्ट दिस इज a unidirectional flow of equation represent the central dogma fundamental law of molecular biology.
तो ये इधर इज अ प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू दिस देयर इज नेक्स्ट the complementary base pairing is there here. So it is a most important structural feature of nucleic acid. It connects bases of one polynucleotide chain nucleotide polymer with complementary bases of other chain. Complementary bases are bonded together via A pairs with T, as in the DNA molecule. Adenine pairs with thymine having double bond. Likewise, same thing is takes place in the RNA molecule. Adenine pairs with uracil having double bond. So this is bonding is similar in this RNA molecule also, and only there is a one nitrogen thymine is replaced here uracil. Then second one is the triplet H bond between G and C in both the DNA or RNA. There is a similar. इसमें similar है. G pairs with C having triple bond. Guanine pairs with cytosine having triple bond in DNA molecule also as well as in RNA molecule also. So nothing is changed in this. There is a these two complementary base pair. So this is there is a happening. Then the structure of RNA molecule, as we have there is a discuss, it is generally single stranded. It is a formed of linear polynucleotides. The pentose sugar is ribose, as we have just discussed. And in DNA molecule deoxyribose, here ribose, uracil, here again there is a thymine, and there is a uracil replaced by thymine. Then, although RNA is generally single-stranded, intramolecular H-bond base pairing occur between complementary bases on the same molecule. So this is there is a structure. So as nitrogen bases again, here also nitrogen bases chemical composition is also similar to like that of a DNA molecule. There are two types of a nitrogen bases, purines and pyrimidines. Then purine is a two ring structure, pyrimidine is a single ring structure, and purines are of two types, adenine and guanine, and the pyrimidines are there is a again two, there is a cytosine and there is a uracil. Here there is a thymine is there is a replace. So such type of a two nitrogen bases are occur. Then, so see here, this is a chart of nucleotides. So nucleotides are a portion of there is a nucleic acid. See, these nucleotides are of two types. One is a nucleoside, another is a phosphoric acid. Nucleoside is there is a again there is divided into nitrogen bases and there is a sugar molecule, and these nitrogen bases as we have just discussed these are purines and this is a pyrimidine. These purines are again two types, one is adenine and another guanine, and pyrimidine is a cytosine, and this is a here thymine. Here it is a particularly it is a portion of a DNA molecule. Here there is a uracil in there, and here is applicable to both DNA and RNA if you are replaced by the uracil. Then here this sugar is here ribose sugar as in the RNA molecule, and here sugar is a deoxyribose sugar in the DNA molecule. So this is a nucleotide. ये क्या है न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या रहेगा, न्यूक्लियोसाइड है और देर इज फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजन बेसिस. तो अगर फास्फोरस अगर निकाल लिए इसमें से अपन ने तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेसिस और शुगर रहेगा खाली, और देर इज ये पूरा मिला है नाइट्रोजन बेसिस शुगर फॉस्फोरिक एसिड, तो ये क्या होगा न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे. न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड इज अ पोर्शन ऑफ ए DNA molecule or there is a RNA molecule and it is also a portion of a क्या बोलेंगे आप उसको देर इज ए न्यूक्लिक एसिड. तो इस तरह से ये देर इज न्यूक्लिक. तो इन दिस मैनर ये देर इज दोनों का स्ट्रक्चर आरएनए का और डीएनए का सिमिलरली है, खाली यहाँ पे चेंजेस क्या है देर इज एक नाइट्रोजन बेसिस अलग है खाली, बाकी का ये पूरा स्ट्रक्चर आप दोनों तरफ यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट the RNA types. This is a
there are three major types of RNAs which occur in all organisms. These are, first one is the messenger RNA, shortly abbreviated as mRNA. Second one is the transfer RNA, shortly abbreviated as the tRNA. And third one is the ribosomal RNA, and it is shortly abbreviated as a rRNA. And these three RNAs are non-genetic बोलते हैं इसको. Why it is called as non-genetic? Because of they are not any role in the heredity. हेरिडिटी में इनका कोई रोल नहीं है. इनका रोल कहाँ है? खाली प्रोटीन सिंथेसिस में ये रोल करते हैं. और देर इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार करते हैं, प्रोटीन तैयार करते हैं. उसके वास्ते इसको बोलते हैं नॉन जेनेटिकल आरएनए. और देर इज टाइप्स ऑफ आरएनए, mRNA, tRNA, rRNA. So this is a types of RNA. So we will see one by one how the structure of each in detail, and how they are, there is a taking a part, there is a role in the protein synthesis. So क्या क्या रोल करते हैं? हर एक का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है प्रोटीन बनाने में. एक प्रोटीन बनाने में, सिंगल सेल में एक प्रोटीन बनाने के वास्ते ये तीनों भी रिक्वायर्ड है. इफ वन ऑफ देम इज देयर इज a lacking or in less quantity, the synthesis of protein is there is a stop, or protein synthesis there is a very less or negligible. So they are must be essential for synthesis of there is a protein molecule. So this is the first one, messenger RNA. This is a single stranded again. mRNA is always single stranded. ये भी single stranded रहता है. As इसका parent RNA भी there is single stranded है, ये भी single stranded है. Then it carries genetic information copied from DNA in the form of a series of 3 base codes, each of which specifies a particular amino acid. Process called as a transcription. Transcription करता है. Trans बोले तो change, script बोले तो language. It changes the language from the nucleoplasm to cytoplasm. So from nuclear membrane ये बाहर आ जाता है, और there is a nuclear membrane में there is a pores है, pores में से बाहर आता है, और there is a it becomes become mRNA. So this is there is a process called as a transcription. And 3 base code means there is a triplet nitrogen bases रहते हैं इसके ऊपर. And the picture that we are going to see here, this is a picture of tRNA molecule. ये there is a tRNA. तो ये ऊपर का जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियस में है, और ये बाहर आके क्या होगा, देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, ये mRNA बन गया. और ये देयर इज उसके ऊपर जो दिख रही है ATG, ये देयर इज ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसिस है. ये इसको बोलते हैं कोडॉन्स. ये देयर इज कोडॉन. तो ये देयर इज कोडॉन्स इसके, और देयर इज एंटी कोडॉन tRNA के मिल जाते, और देयर इज अमीनो एसिड की चेन तैयार हो जाती है, और अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं अपन, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो दिस इज लुक्स लाइक ए tRNA. ये भी देयर इज mRNA मॉलिक्यूल है. ये देखो सिंगल स्टैंडर्ड है, और देयर इज पहला कोडॉन दिख रहा है, दूसरा कोडॉन GCU ACG, दूसरा कोडॉन. ये जो आखिरी के है देयर इज UAG, ये देयर इज आखिरी के कोडॉन. तो पहले कोडॉन को क्या बोलते हैं, इनिशियल कोडॉन. हमेशा देयर इज AUG इनिशियल कोडॉन है, और दिस इज ये लास्ट के जो है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल कोडॉन, जहाँ से टर्मिनेट हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ mRNA molecule. So the points for this mRNA molecule is like this manner. Each mRNA contains the codons. Codons बोले तो 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक मिला के कोडॉन्स बन जाता है for one polypeptide chain. If mRNA contains 900 nucleotides, the polypeptide chain synthesized by this mRNA will contain 3 amino acids. अगर mRNA में अगर 900 न्यूक्लियोटाइड्स है 900, तो उससे 300 अमीनो एसिड की चेन बन जाती है, और वो देयर इज अ प्रोटीन बन जाता है. चेन ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन बन जाता है. तो इतने देयर इज एक देयर इज mRNA का जो ये है ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेस, उसमें एक tRNA का देयर इज अमीनो एसिड ला के वहाँ पे फिक्स कर देता है. दिस इज देयर इज such type of a mechanism is there is a occurs. And here see here important codons, triplet nitrogen bases जो बोले अपन ने, initially start is translation AUG, ये हमेशा क्या है,
फर्स्ट वाला कोडॉन है AUG, यहाँ से देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, मीथियोनाइन तैयार करता है फर्स्ट इन यूकैरियोटिक में, और GUG प्रोकैरियोटिक में इनिशियल कोडॉन है, वो देयर इज अ अलग अमीनो एसिड देयर इज अ तैयार करता है। तो दिस इज अ, ये स्टॉप ट्रांसलेशन है। इसमें क्या हो जाता है कि अमीनो एसिड का देयर इज अ तैयार होकर एक प्रोटीन ये टर्मिनेट करता है, UAA, UAG, UGA। सो दिस इज देयर इज अ स्टॉप कोडॉन, और इसको ये टर्मिनेशन कोडॉन भी बोलते हैं। और ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद देयर इज नेक्स्ट प्रोसेस क्या है प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन को भी स्टॉप करते, स्टॉप ट्रांसलेशन, स्टार्ट ट्रांसलेशन, ये भी बोल सकते हैं। और इनिशियल कोडॉन और टर्मिनल कोडॉन भी बोल सकते हैं। सो दिस इज देयर इज अ mRNA। दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड में क्या है, it is a type of gene that involved in protein synthesis depend upon their length, kind, sequence of nucleotides। so ये मैसेंजर RNA का ऑन द बेसिस ऑफ उसका न्यूक्लियोटाइड्स के क्वांटिटी पे है कि देयर इज अमीनो एसिड कितने देयर इज तैयार करता है, प्रोटीन कितना तैयार करता है। देन सेकंड वन इज rRNA, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोमल RNA। So ribosomal RNA, it is called because it is present in the ribosomes proper। ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ रहता है, उसके वास्ते इसको बोलते हैं राइबोसोमल RNA। राइबोसोम इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में का एक सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम, वो प्रोटीन सिंथेसिस को मोटिवेट करता है, इनिशिएट करता है, तो इसके वास्ते राइबोसोम। तो देन इट इज द लॉन्गेस्ट RNA कंपेरिजन ऑफ 80% ऑफ द टोटल RNA। ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी पे है, 80% है टोटल ऑफ RNA एज कम्पेयर टू द मोर फ्रॉम mRNA एंड tRNA, सबसे ज़्यादा है तीनों में। इट सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस बट फाइनल ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द nucleus, is synthesized in the nucleus but final organization takes place in the cytoplasm है ये, साइटोप्लाज्म में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइबोसोमल RNA इज आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है बट इन सम रीजन्स इट इज डबल स्ट्रैंडेड ड्यू टू फोल्डिंग। ये बास्ट टाइम क्या हो जाता है, फोल्ड होता है इटसेल्फ, और उसकी वजह से क्या है डबल स्ट्रैंडेड दिखता है, बट इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। The folded part shows complementary nitrogen bases, while unfolded part shows no complementary nitrogen bases। जहाँ जहाँ भी वो खुद से फोल्ड हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन। ऐसे बेस पेयर देर इज ज्वाइन होते हैं, ए को देर इज यू ज्वाइन होता है हैविंग डबल वन एडेनाइन पेयर विद यूरासिल, और देर इज जी को सी पेयर होता है गुआनिन पेयर विद साइटोसिन हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज अ अनफोल्डेड पार्ट शो अ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस। तो ये such type of RNAs are there, rRNA। Then what is the role of this rRNA in protein synthesis? तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है इन्हें, टू प्रोवाइड प्रॉपर बाइंडिंग साइट फॉर mRNA ऑन द राइबोसोम। जब mRNA बाहर निकलता तो ये क्या करता है उसको प्रॉपर साइट लाके देयर इज अ प्लेटफॉर्म देता राइबोसोम में टू फिक्स इनटू द प्रॉपर बाइंडिंग साइट में। और नेक्स्ट में क्या करता है टू ओरिएंट mRNA इन सच वे दैट इट्स नाइट्रोजन बेस कोडॉन्स प्रॉपरली रीड, और इस तरह से उसको देर इज फिक्स करता है राइबोसोम में कि उसके जो कोडॉन्स है नाइट्रोजन बेसिस है वो प्रॉपरली रीड हो जाए, इस तरह से उसको फिक्स करके रख। और आखिरी में क्या करता है एट द एंड टू रिलीज tRNA फ्रॉम mRNA आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू पेप्टाइड चेन। जब tRNA एक एक अमीनो एसिड ला के यहाँ जमा करता है mRNA पे और एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, तो जब ये क्या करता है rRNA वो tRNA को वहाँ से देर इज निकाल लेता है, वहाँ से रिलीज कर देता है। तो ये देर इज अ प्रोसेस इज अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द RNA, ये RNA का रोल है। एंड द लास्ट वन इज द tRNA, ट्रांसफर RNA। sometimes it is also called as a sRNA भी बोलते हैं इसको, because of it is a soluble RNA। whenever it is a transfer one amino acid from amino acid pool to the site of protein synthesis and it is a soluble, उसमें वहाँ पे क्या हो जाता है बाद में वो डिसअपियर हो जाता है। ये ट्रांसफर बोले तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जैसे अपन एक मशीनरी है,
या फिर एक अपना एक ये है कारखाना है, तो उसमें अपन एक रॉ मटेरियल कहाँ से लाते, बाहर से लाते, और वो रॉ मटेरियल को देर इधर एक इसमें देर इधर प्रोडक्ट में देर इधर कन्वर्ट करते। वैसा ये क्या करता है, छोटा छोटा मटेरियल लाता है और वो देर इधर अमाइनो एसिड ला के मशीन में डालता है। जहाँ मशीन कहाँ है, ये mRNA है, और एक देर इधर प्रोडक्ट तैयार होता है, प्रोडक्ट को बोलते हैं प्रोटीन। तो ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। Then it is the shortest RNA. It is synthesized in the nucleus but undergoes some changes on entering the cytoplasm. ये भी न्यूक्लियस में तैयार होता है और उसके बाद बाहर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और वहाँ पे थोड़े बहुत उसके चेंजेस होते हैं, और देर इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ अमाइनो एसिड is takes place. Each amino acid has its own tRNA. हर एक अमाइनो एसिड का उसका एक tRNA मॉलिक्यूल है which binds to it and carries it to the growing end of the polypeptide chain. इस तरह से वो पॉलीपेप्टाइड चेंज हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड बोले तो दो अमाइनो एसिड जुड़ जाते बाय एक पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से एक से दो अमाइनो एसिड जुड़ गए तो वो क्या हो जाता है, पॉली हो जाता है, मेनी हो जाता है, और पेप्टाइड बॉन्ड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं इसके। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बोले तो प्रोटीन बोलिए। एंड इट कंटेन्स अबाउट 15 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए। ये दोनों तीनों में से इसका देर इज अ परसेंट 20% है टोटल आरएनए के। देर इज अ टीआरएनए, और टीआरएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड है बट वेरियसली फोल्डेड। इट इज अ ट्राइफोलिएट, इसके स्ट्रक्चर अलग अलग है। क्लोवर लीफ लाइक भी है, ये ट्राइफोलिएट भी है, और उसके बाद हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो ये 3 स्ट्रक्चर में इधर इधर पाया जाता है। तो ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ट्राइफोलिएट भी बोलते हैं उसको, 3 पत्तों के वैसा रहता है, वैसा दिखता है। और हेयर पिन लाइक वाले बोलते हो, अपने जो बालों में पिन लगाते हैं वो पिन के वैसा दिखता है। ऊपर से थोड़ा थोड़ा गैप गैप रहता है और नीचे की एक लंबी लाइन रहती है, तो उस वजह से इधर इधर हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। Two free arms, the short arm ends in G and the long arm ends in CCA. तो इसके दो आर्म है, एक छोटा आर्म है और एक बड़ा आर्म है। शॉर्ट आर्म इंड्स, छोटा आर्म जो खत्म होता है जी पे, गॉनाइन पे, और बड़ा आर्म लॉन्ग आर्म जो है इंड्स होता है CCA, जिसका जो लास्ट इंड है ए है, जहाँ से अमाइनो एसिड अटैचमेंट करता हो। तो इसे इसके एंड है। यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बताया दिवाली, ये डायग्राम देखिए। So this is the diagram of hairpin like, yes, ये कौन सा है, ट्राइफोलिएट लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये बताया वाला है, देखो 5 डैश इंड जी इंड्स विद जी, और जो 3 डैश इंड है वो CCA इंड से इंड हो रहा है। यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट बोलते हैं इसको, यहाँ पे ये। और ये जो नीचे का पार्ट है ये एंटीकोडॉन रीजन, ये mRNA पे जाके ज्वाइन होता है। ये एक अनदर स्ट्रक्चर होता है ट्राइफोलिएट का, और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ देयर इज द टीआरएनए मॉलिक्यूल। ये देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन द टीआरएनए पेयर्स विद द 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ mRNA। तो इसके 3 नाइट्रोजन बेसेस और mRNA के 3 नाइट्रोजन बेसेस जो फिक्स हो जाते हैं। और देयर इज जैसे अपना लॉक और की है, स्पेसिफिक पी इज इंटर्स इनटू द स्पेसिफिक लॉक जैसा होता है, तो वैसा टीआरएनए और mRNA में एक देयर इज पोलैरिटी है, वो देयर इज 3 नाइट्रोजन बेसिस है दोनों के पास भी, और अपोजिट है, और वो आके देयर इज सपोज टू बी mRNA के पास AU है, AUG है, तो उसके पास क्या रहेगा, UAG, तो उसके अपोजिट में रहेगा। तो ये देयर इज 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन द tRNA pairs with 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ mRNA। ये प्रोसेस है देयर इज tRNA में। In certain tRNAs, in addition to these 4 arms, an extra arm called variable arm occurs as shown in the figure. The amino acid acceptor end and the anticodon arms are oriented in the opposite direction. जो अभी अपन पिक्चर में देखे कि देयर इज ये अमीनो एसिड अटैचमेंट साइड और एंटीकोडॉन साइड ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो दिख रहे हैं ये आर्म्स है उसके, ये वाला आर्म है, ये वाला आर्म है, ये शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ये लूप भी बोलते हैं इसको, और ये है स्ट्रक्चर ट्राइफोलिएट लाइक स्ट्रक्चर। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये इधर की साइड ये नहीं रहेंगी, खाली इस साइड रहेंगी। तो ये दिस इज ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम अपन यहाँ पे नहीं लिए, तो आप बुक्स में अगर देखें तो उसकी डायग्राम मिलेंगे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज देयर इज 3
थ्री देयर इज द टाइप्स ऑफ आरएनए। ये हो गए 3 टाइप्स के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एंड हियर सी है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसा हो रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम में आपको दिखेगा। देखो इधर इधर प्रोटीन सिंथेसिस 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है पहला ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, ये आपको दिख रहा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, सपोज टू बी ये व्हाइट जो शीट दिख रही है आपको, ये सपोज टू बी एक पूरा सेल समझो इसको। जो पूरा एक स्लाइड जो दिख रही है ये क्या है, एक सेल है। और इसके अंदर, ये सेल के अंदर क्या दिख रहा है, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये पूरी यूनिफॉर्म नहीं, कहीं कहीं इसको क्या है, ऐसे छूटे वाला है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर में से ये क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये क्रोमोसोम और ये डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है, कहाँ से आता है, ये न्यूक्लियर पोर में से बाहर आ जाता है और क्या हो जाता है, ये एमआरएनए बन जाता है। और ये कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पकड़ते, ये पॉलीराइबोसोम होता है इसका। और उसके बाद ये टीआरएनए मॉलिक्यूल या अमीनो एसिड यहाँ से लेके आ रहा है ट्रांसफर करके, और ये आरआरएनए फिक्स करता है उसको यहाँ पे बाहर आने के बाद टीआरएनए को, और सॉरी एमआरएनए को। और इस तरह से देयर इज एक चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इसको क्या बोलते हैं, देयर इज अ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो ये अमीनो एसिड यहाँ पे है एक जगह, और उसके बाद ये ट्रांसफर हो गया एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो दिस इज देयर इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये एक अलग डायग्राम बताया है, डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, और ट्रांसलेशन बन के प्रोटीन तैयार हो रहा है, ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन ये इधर ये अमीनो एसिड की चेन, एक बॉन्ड है हर एक में, उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो गई। तो ये फेनाइन है, ट्रिप्टोफैन है, ग्लाइसिन है, सेराइन है, ये पूरे 20 अमीनो एसिड एक जगह आए बाद एक प्रोटीन तैयार हो जाता। तो ये देयर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड द रोल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ आरएनए। ये सबका रोल है इसके अंदर, और उससे प्रोटीन तैयार होता है। तो इन दिस वे देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है। कैसा होता है, 3 पॉइंट में बताया वाला है। देयर इज एमआरएनए बाइंड्स टू द राइबोसोम, और राइबोसोम सर्चेस फॉर स्टार्ट कोडॉन्स, and tRNA brings correct amino acid methionine to the ribosome। ये tRNA उसको bring करके लाता है करेक्ट अमीनो एसिड, वहाँ से methionine से ढूंढ। उसके बाद each tRNA carries one type of amino acid। हर एक tRNA अलग अलग अमीनो एसिड कैरी करके लाता साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की जगह। और द एंटीकोडॉन 3 नाइट्रोजन बेसिस ऑन द tRNA, हाँ, must complement codon for amino acid to be added to the protein chain। इस तरह से प्रोटीन चेन तैयार हो जाती है। और राइबोसोम रीड्स नेक्स्ट कोडॉन, और उसके बाद राइबोसोम नया कोडॉन ढूंढता है। टीआरएनए कंटिन्यूस लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू कोडॉन। ये बहुत सारे टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हैं 20% के, ये सब एक एक अमीनो एसिड कैरी करके लिख जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड लिंक अमीनो एसिड टुगेदर, और बॉन्ड तैयार हो जाता है, और लिंक पॉलीपेप्टाइड लिंक तैयार हो जाती है। राइबोसोम्स रीच स्टॉप कोडॉन, उसको बाद में स्टॉप कोडॉन में रीच हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। अमीनो एसिड चेन इज रिलीज, वहाँ से फिर अमीनो एसिड चेन रिलीज हो जाती है, और वेर एवर नेसेसरी, जब प्रोटीन की जहाँ जहाँ जरूरत है सेल में, वहाँ पे उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो सच टाइप ऑफ देयर इज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन ए प्रोटीन इज देयर इज अ फॉर्म। तो ये प्रोटीन तैयार होता है। तो ये देयर इज अ प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। इस तरह से ये तैयार हो जाता प्रोटीन। तो ये लास्टली डीएनए और आरएनए का डिफरेंस अपन पिछले में देखे। When we study the structure of DNA molecule, we have studied the difference between DNA and RNA. Just we have recapitulating here again, what is again difference. तो ये डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बोले अपन ने, यहाँ पे ये न्यूक्लियस में भी है और साइटोप्लाज्म में भी है। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसमें राइबोस शुगर है। उसके बाद यहाँ पे थायमाइन है, यहाँ पे यूरासिल है। उसके बाद ये लॉन्गर है, डीएनए इज लॉन्गर कंसिस्टिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये छोटा है उसके कंपेरेटिव में। दी आरएनए इज द कंपेरेटिवली शॉर्ट, मेड अप ऑफ ओनली फ्यू हंड्रेड्स न्यूक्लियोटाइड्स है। और जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मटेरियल ऑफ फ्यू वायरसेस। ये बहुत जगह देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, कुछ वायरसों में
ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। और ये टाइप्स ऑफ डीएनए भी है, वो फॉर्म में बोलेंगे उसको, मगर टाइप्स जो है आरआरएनए के है वो देंगे एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। तो ये इस तरह से ये completed है, there is a RNA molecule. So question may be asked to you in the examination for short note, write mRNA or sometimes tRNA or RNA. So you have to prepare with the label diagram and their points. तो उसके points क्या क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा. So this is there is a generally asked problem. Okay. जोया, सर। हेलो. हाँ, समझ गया है. यस सर। हाँ, कुछ का प्रॉब्लम होगा तो उससे और वो उसके नोट्स बनाओ. यस सर। हाँ, न्यूक्लिक एसिड में ये पूरा पोर्शन है. ओके. ओके पूरे सर। टॉप. यस सर। ओके, थैंक यू। पॉइंट से दुखायला लागले.